57 इस्लामी ममालिक होने के बावजूद फ़लस्तीन पर जुल्म सितम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरहम भट्ट और आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है फ़लस्तीन पर जुल्म सितम के अंबार किए जा रहे हैं और तमाम इस्लामी ममालिक इस वक्त चुप हैं। और जैसा कि आपको पता है पूरे मुल्क के अंदर एक प्रोटेस्ट की, एहतजाजों की, उनके साथ यकजहती के लिए, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के लिए एक आबो हवा कायम की गई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कॉल दे दी है कि मुल्क के अंदर एहतजाज किए जाएँ और मुल्क के अंदर ये नारा बुलंद किया जाए कि फ़लस्तीन को जब तक आज़ाद नहीं किया जाएगा, तब तक जब फ़लस्तीन पे ये जुल्म सितम नहीं रोके जाएंगे, तब तक ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। लेकिन हर प्रोटेस्ट के कोई ना कोई मकासद होते हैं। आज हमारा मेन मोटिव ये है कि आएँ इन प्रोटेस्ट में आने वाले लोगों से जानें कि क्या ये प्रोटेस्ट कामयाब हो पाएगा, क्या है इन प्रोटेस्ट के मकासद। जो लोग आए हैं कि वो बज़ारन सिर्फ यहाँ पे सेल्फियाँ खिंचवाने आए हैं, यहाँ पे पिक्चर्स लेने आए हैं कि ज़ाहिरी तौर पे वो कुछ करके दिखाएंगे। तो आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनका नैरेटिव। आएँ। सो नाज़रीन, मेरे साथ दो फ़लस्तीनी भाई मौजूद हैं, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Ismail Ali. Ismail. Ismail, tell me what is your feeling as in Palestine, as a Palestine citizen in Pakistan. So what is your reaction about all these protests? Actually, I really appreciate my Pakistani second nation, and I really thank every Pakistani people who are standing with us with solidarity for the Palestinian. And uh, I feel like Pakistan is like my second home. So tell me, what is the reason? What are the main causes that Israel taking all these steps and doing all these bad things to your nation? What is the main reason? The main reason is that because of the Western wall, which the Israeli believe that it belongs to them. Palestinians are praying at Al-Aqsa Mosque. At the same time, there is that law which the Israeli believe. It's called the Jewish nation. Like it's for the Jewish people. They believe that their nation must only contain the Jewish people. So the Muslim over there who are living in like the occupied land of Palestine, the Muslim people who are living over there, the Israeli people and the settlers forces, they are trying to like doing the ethnic cleaning against them, evict them from their houses, and steal the houses which belongs to the indigenous people of Palestine. Okay, tell me the one more thing that Jewish always claim that they are a very peaceful nation, and they always, show that this hypocrisy in front of all the international world that we promote peace and we, as a Palestine, you have met them. So, what are the real face? Please tell the audience of Pakistan. Excuse me, the real face of what again? Israeli people. What are the real? You need to expose the Israeli people, the hypocritic face of them. All right. Basically, the Israeli people are trying to cover all the media channels again. So they are trying to cover all the crimes which they are doing against the Palestinian people, and who are the victims in the end? It's us. They are killing like almost like in the situation right now going on Gaza. There are more than 150 people. Sorry, more 50 martyrs right now. Almost 58 children and 37 women. They are their victims. They are like due to the crime which they are doing against us. सो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं जुल्म सितम की इंतहा की है। दूसरे फ़लस्तीनी भाई इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. व्हाट्स योर गुड नेम? I am Ibrahim. Ibrahim, tell me what is your feelings about Pakistani nation? They are protesting for your nation. Yeah, firstly, I can never find the true word to express the pain of my people. Okay? We are standing here to show the Israeli and to show the whole world that we will keep fighting every possible way until either death or either freedom. So what are the main reasons that they are guys out? Reason that Israel all is doing against only against Palestine. They came to our land for no reason. Their occupation is never justified. This is all. This is all. So any message for Pakistani people? Any how you are feeling in Pakistan, like all these protests and all? Yeah, we thank these people, this great nation, for standing with us, for raising their voices for our holy cause.
Thank you guys. जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों भाई यही बात कर रहे हैं कि ये बहुत शुक्रगुजार हैं और जैसे कि पाकिस्तानी अवाम ने यकजहती दिखा रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। आएँ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हानिया। सॉरी, हानिया। हानिया। हानिया, मुझे बताएं कि एंड किसी भी प्रोटेस्ट जो होता है उसके कुछ मकासद होते हैं, तो इस प्रोटेस्ट का आपको कोई आउटपुट नज़र आ रही? ऑब्वियसली इस प्रोटेस्ट का द मेन एंड ओनली रीज़न इज़ टू बेसिकली प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे जो हमारे बेसिकली इंटरनेशनल कवरेज के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसराइल ने उनके काफ़ी ज़्यादा मीडिया चैनल्स वगैरह पे बॉम्बिंग की है और उन्हें वो कवरेज नहीं मिल रही। और ऑल्सो द फैक्ट कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सेल्फ डिफेंस। तो आई थिंक ये प्रोटेस्ट इसीलिए है कि हमें बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि पीपल सपोर्ट पैलेस्टाइन एज वेल। सो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सारे निकले हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ जो लोग शो ऑफ के लिए आए उसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, और एज एन इस्लामिक कंट्री हमें कुछ चीज़ें, हमारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको भी हमने फॉलो करना है, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स को आप कैसे एक्सपोज करेंगे? व्हाट डू यू मीन के शो ऑफ के लिए हैं, कुछ लोग यहाँ पे जस्ट फॉर टेकिंग पिक्चर्स एंड स्टफ। Even if people are out because of this show off, I think it is good. अगर वो शो ऑफ के लिए भी बाहर हैं, एटलीस्ट वो बाहर तो निकले, काउंट तो होगा। जितने लोग आएंगे उतना इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, उतना प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई शो ऑफ के लिए आया है, हर किसी को पता है उसके दिल का क्या हाल है। ये इसका हमें पैलेस्टाइन का कैसे पता चले कि वहाँ पे ये हो रहा है, हमें ऑनलाइन ही पता चले। तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पोस्ट ऑनलाइन एंड And definitely it is making a change. It is making a change. It is putting pressure on Israel, and they are trying to stop it, but they won't be able to stop us. थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपका नाम? फरजाना शब्बीर। फरजाना मैम, ये बताएं कि एंड रिजल्ट की प्रोटेस्ट का कोई कुछ आउटपुट आएगी? जी, यहाँ पर अगर हम आए हैं, यहाँ पर अगर हम ये सिर्फ खाली अपने आप को शो ऑफ करवाने नहीं आए कि जी हम यहाँ पर आके वीडियोस बना लें, अपनी ये पिक्स ले लें, हम लोग अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, अपने सोशल मीडिया पे हम अपलोड करें और दिखाएं उनको कि जी देखें हम। लेकिन हमारा मकसद यही है कहने का इनको कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, और हम तो साथ हैं अगर हमारे हुकूमती इदारे जो हैं और ख़ास हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे जितने भी हैं, अगर वो हमारे साथ हो जाएं, हम लोग ये बताएं, सबको शो करें कि जी पाकिस्तान भी जो है फ़लस्तीन के साथ है। सिर्फ मैं और आप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया और जितने भी हम लोग मुसलमान हैं सारे, और पाकिस्तान जो है वो भी फ़लस्तीन के साथ है। और ये हम इसराइल को ये भी कहेंगे कि अगर मतलब ये जो है इंसानियत, मज़हब के अलावा भी एक चीज़ इंसानियत होती है, और कोई भी मज़हब जो है किसी इस चीज़ को इजाज़त नहीं देता कि इंसानियत पर आप जुल्म करें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोनिया मौज़म। ओके सोनिया मैम, बताएं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इनके कुछ आउटपुट नज़र आएगी, कुछ रिजल्ट्स भी नज़र आएंगे कि नहीं? हाँ जी, रिजल्ट्स ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं कि मैंने अगर कोई पिक्चर्स लगा रही हूँ, मैं मेरे जितने जानने वाले हैं दे सेइंग कि वी शुड हैव बीन देयर एज वेल। इट्स सो हॉट जस्ट कमिंग राइट नाउ। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा गर्मी बहुत है, मत जाओ। मैंने कहा आप उनके बारे में सोचें जो फ़लस्तीन में इस वक्त हैं, जिनके पास ना घर है, उनके पास गर्मी नहीं है, तो कांट वी कम आउट हेयर एंड स्टैंड विद देम। दिस इज जस्ट अ सॉलिडारिटी है हमारी उनके साथ, और दुनिया को दिखाने के लिए कि दे आर नॉट अलोन, वी आर स्टैंडिंग हियर विद देम। मैम, गवर्नमेंट हैवंट टेकन एनी इनिशिएटिव अभी तक, तो गवर्नमेंट का क्या रोल होगा अभी, क्योंकि वी आर मुस्लिम नेशन एंड देयर आर 57 नेशंस एज वेल, तो दे हैवंट स्पोकन अबाउट दिस टॉपिक, सो व्हाट इज द मेन रीजन? I think the main reason is whatever is happening all around the world. वो जो Muslim leaders का कह रहे हैं they're asleep, our leader is I think asleep as well. Because we are not satisfied with what's happening. We are not satisfied with the stance of our government. Thank you so much, ma'am. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अस्का अरशद। अस्का, मुझे बताएं कि ये प्रोटेस्ट देख रही हैं आप, और एक आबो हवा प्रोटेस्ट की पूरे मुल्क में एक अच्छी, बहुत अच्छा साइन है, लेकिन एंड रिजल्ट कोई रिजल्ट आएगा, क्योंकि हर प्रोटेस्ट के कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। देखिए, हर प्रोटेस्ट के बिल्कुल कुछ ना कुछ मकासद होते हैं। यहाँ पे जो हमारा मुतालबा है
वो ये है कि हमारा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाकर इस बात को बल्कि पुरज़ोर अंदाज के साथ ये बताया जाए कि सारी आवाम, एक एक बंदा, एक एक बच्चा फ़लस्तीन के साथ है और सीज़ फायर के लिए कॉल किया जाए। हमें पता है कि हम आर्मी नहीं भेज सकते, कोई ऐसे बड़े दावे हम नहीं चाहते, लेकिन सीज़ फायर तो करवाया जाए। दूसरा, फंडिंग रोकी जाए इन सब की। यूएस फंडिंग कर रहा है, हम लोग इजरायली प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हम यहाँ पे आए हैं अवेयरनेस क्रिएट करने। मैं अपने चारों बहन भाइयों के साथ आई हूँ, इसलिए हमारे माँ बाप ने हमें इजाज़त दी है कि हम जाएं। फ़लस्तीनी बच्चों, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे छोटे बहन भाई, उन सब के लिए हम आए हैं यहाँ पे। फंडिंग रोकी जाए, हम लोग सब इजरायली प्रोडक्ट्स को बैन करें, यूएस को फंड करने से रोका जाए, और दूसरा यही कि सीज़ फायर कॉल किया जाए। बहुत हो गया, बहुत जाने, बहुत खून पानी की तरफ है। जो जिस तरह की आपने बात की, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। और अभी तक पूरे मैं ये मुझे प्रोटेस्ट में कहने की ये बात से आड़ नहीं है कि आपने बहुत क्रिएटिव सोल्यूशन दिया। यूएन की बात की है, अभी तक किसी बंदे ने अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं की। यूएन के अंदर आवाज़ उठाई जाए, सारे प्लेटफॉर्म आपके पास OIC का, तो उसको क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा? 57 इस्लामी ममालिक हैं, दे आर जस्ट टेकिंग सीइंग ऑल दिस। मोहम्मद अल कुर्द एक बहुत रिनाउंड राइटर हैं फ़लस्तीन के। उनकी फैमिली उन 24 फैमिलीज़ में से एक है जिनको शेख जराह से निकाला जा रहा है। उन्होंने कॉल किया है, उन्होंने कॉल दिया है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर शहर में लोग बाहर निकले, इसके खिलाफ रहे, क्योंकि जो फ़लस्तीनी वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमें रो के कॉल कर रहे हैं कि आप सोशल मीडिया पे हमारे लिए बोले, आप सड़कों पे पॉपुलर प्रोसेस में लिए हमारे लिए निकले। हम इस वजह से यहाँ पे निकले, और अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमें इससे फ़ायदा मिल रहा है, हमारी आवाज़ उठाएं। वहाँ पे अल जज़ीरा, सारे जो मीडिया हाउसेस हैं, उनको एयर स्ट्राइक्स के थ्रू पूरी की पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी गई हैं। उनकी आवाज़ कहीं तक नहीं पहुँचेगी अगर हम भी चुप करके घरों में बैठ जाएंगे। थैंक यू सो मच इसका आपका बहुत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शिराज अहमद। शराज भाई, ये बताएं कि यार एट द एंड ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके कुछ ना कुछ मकासद होंगे, कुछ रिजल्ट, कुछ आउटपुट नज़र आ रही है आपको? मकासद सर, इसका मकासद सबसे बड़ा मकासद ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालना और इस चीज़ की अवेयरनेस रेस करना कि फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा स्ट्रिप के अंदर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, जिसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती, जो वहाँ पे मासूम बच्चों से लेके बूढ़े लोगों के ऊपर जिस तरह से बमबारी की जा रही है, घरों में एक मिनट का टाइम दे के अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उसके बाद जो है पूरा घर जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, ज़मीन बोस हो रहा है। तो ये जुल्म बंद होना चाहिए। हम 1.5 अरब मुसलमान जो हैं, वो 1.5 करोड़ जो यहूदी हैं, जो जूज़ हैं, उन्होंने हम लोगों को इस तरह से शिकंजे में फंसाया हुआ है कि हम अपने हक़ के लिए भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि मलेशिया के साथ मिल के, तुर्की के साथ मिल के, ईरान के साथ मिल के एक इस तरह का इंटरनेशनल प्रेशर रेस करना चाहिए। और अगर प्रेशर रेस करने से कुछ नहीं होता तो फिर अपनी फ़ौजों को भेजें। ये फ़ौजें इसलिए ट्रेन नहीं कर रही पिछले 70 सालों से कि ये बैठ के तमाशा देखते रहे कि वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों का खून बहता रहे, खून की नदियाँ बहें और ये लोग देखते रहें। फ़ौजों को भेजें, इंटरवीन करें, वहाँ पे डायरेक्ट लैंड पे जाके इंटरवीन करें और उनको मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि वो इसी जवाब को समझते हैं, वो बातों की बात नहीं समझते। वो अब मुझे ये भी बताएं, बहुत अच्छी बात की आपने, जो लोग यहाँ पे आए हैं और ढोल की थाप पे रख करके आज़ादी के नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान या इस्लामी मुल्क इस तरह आज़ाद हुए थे, क्या ये हमारी रिवायात हैं? अब इन रिवायत के ऊपर रोशनी। आपको इस पर बात करता हूँ। अच्छा, इस दफ़ा ढोल का रक्स नहीं हुआ, वो पिछले लास्ट वाले लिबर्टी वाले लास्ट वाले में, और काफ़ी साफियों के साथ बदतमीजी की गई, उस चीज़ को कंडेम भी नहीं किया। मैं वो चीज़ बिल्कुल कंडेमेबल है, उस चीज़ की पुरजोर मजम्मत की जाती है। वहाँ पे इतने सारे लोग जमा होते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर आ जाते हैं जो कि माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। वो शरपसंद अनासिर इस पूरे प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इस प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट वो लोग करते हैं जो इतनी गर्मी में, जिन्होंने सिद्दीक ट्रेड सेंटर से यहाँ तक मार्च किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक पैलेस्टाइन कॉज के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, बहुत अच्छे तरीके के साथ नज़र रखिए, कोई हरासमेंट ना हो, किसी और किस्म का मसला ना हो। वो लोग इस प्रोटेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो लोग इस कॉज के लिए बाहर निकले हैं। जहाँ तक गंदे लोगों की बात है तो उसकी बिल्कुल सब लोग मजम्मत करते हैं, हम खुद मजम्मत करते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो न्यूट्रल माइंडेड हैं, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो यहाँ पे जमा हैं, वो सब लोग इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। वो लोग हम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते। थैंक यू सो मच शराज। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुभान बिलाल। सुभान भाई, ये बताएं कि एक पूरे मुल्क के अंदर फ़िज़ा कायम है प्रोटेस्ट की, लेकिन एंड रिज़ल्ट इन प्रोटेस्ट का कोई मकासद नज़र आ रहे हैं आपको?
नहीं जी, फ़िलहाल तो ये जो प्रोटेस्ट हैं ये सिर्फ इसी तरह से हैं कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि वो एक बंदा था, उसने अपने साथ बॉडीगार्ड रख लिया, एक 65 साल का बंदा। तो उसे किसी ने पूछा जी कि ये आपने 65 साल का बंदा रख लिया, लोग हट्टे कट्टे नौजवान लोग रखते हैं, तो उसने कहा जी ये बददुआ बड़ी लगती है। ठीक है, तो वही बात है कि हमने अभी तक ये जो किया हम बददुआएँ दे रहे हैं। बददुआओं से ना तो फ़लस्तीन कभी आज़ाद हो सकता है और कश्मीर को हमने कितना को बददुआओं से आज़ाद करवा लिया। 70 साल तरीक हमारे सामने है, कितने आज़ादी की नारे लगा लिए लेकिन आज़ादी नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह से 70 साल में हमने सिर्फ उनको जो है ना वो एटलीस्ट अगर दिया है तो हमने जा कश्मीर से निकल जा के नारे दिए हैं, इसके अलावा हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। और इसी वजह से वो आज भी वो लॉकडाउन की कैफियत के अंदर रहे हैं, पूरा साल रहे हैं, किसी ने उनको नहीं पूछा। इसी तरह हम फ़लस्तीन के साथ भी यही कर रहे हैं कि हम जो है ना वो यही वाली चीज़ें कर रहे हैं। उनको फ़लस्तीन के भी बेसिकली हमें यहाँ पे ड्रेस करने की ज़रूरत है अरब्स को, क्योंकि हम थोड़ा सा उनसे बहुत दूर हैं। ठीक है, उनको बेसिकली चाहिए कि अरब्स को चाहिए कि वो उसके ऊपर कोई स्टैंड ले। मिस्र उसके साथ है, उर्दन उसके साथ है, तुर्की उसके साथ है, वो लोग करें। OIC ने अभी इजलास किया और इजलास के बाद उन्होंने क्या कहा, हम एक मजम्मती करारदाद पेश करेंगे। क्या चल रहा है ये? तुम लोग हज़रत अली को मानने वाले हो, ठीक है, सलाउद्दीन यूपी की नस्ल के लोग हो तुम, जिसने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। ठीक है, आप वो लोग हो जो हज़रत खालिद बिन वलीद की नस्ल को मानने वाले हो और उनने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया। क्या ये लोग अमीर माविया की सल्तनत के ऊपर चल रहे हैं जो छोड़ के वो गए? मैं इसमें किसी भी इस्लामी शख्सियत को इस तरीके से कोट नहीं करूँगा, लेकिन उनके दौर में भी हक़ के ऊपर बात होती रही है। वो और मकासद जिस तरह से भी चलते रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर हम यहाँ पे ड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो यजीदियत है, बिल्कुल हसैनियत के साथ बिल्कुल नहीं इंसाफ किया जा रहा। और अभी जो लोग बिल्कुल कुफा का किरदार हम अदा कर रहे हैं, हम तो एटलीस्ट बाहर निकल, हम कुफी नहीं बन रहे, हम एहतजाज तो कर रहे हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं एहतजाज कर रहे और अभी भी जिस तरह UAE वालों ने हमास की एड बंद करने का ऐलान कर दिया, और हमास इसके अलावा करे क्या? मतलब वो मारे पत्थर तो वो ठीक है, पत्थर भी ना मारे, वो जो है ना वो टेररिज्म में गिन लेंगे। और अगर ये कुछ करना चाहेंगे तो वो जी ये तो हम सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी है बिल्कुल। इस चीज़ को जो है ना कंडेम करना चाहिए और तमाम मुल्कों को मिलके इस एक जो है ना प्लेटफॉर्म, इसका बेसिक मैं हल आपको बताता हूँ क्या है। हल इसमें यह है कि आप हमला कर देंगे, कल को यहूदी फिर वही काम करेंगे। उसका बेसिक हल ये है कि तमाम लोग अपनी एक फ़ोर्स बनाएं जो कि उनके बेसिकली 4 इलाके हैं, गज़ा है, वेस्ट बैंक है, उन सब इलाकों की प्रोटेक्शन करें। उनको इवन ये राइट नहीं है कि वो अपना लीडर चूज़ कर सकें। अभी शेख जराह का जो इलाका है उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया, उसको कोई छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि यहूदियों अमेरिका ने क्या किया। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी जो ये लोग UN की बातें कर रहे हैं ना, अल्लामा इकबाल ने सिंपल बात की थी। सबसे पहले हम वतन परस्ती पे आते हैं, जिस तरह हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते हैं कि भाई इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा जो इसका पैरहन है वो मज़हब का कफन है। ठीक है, जो वतन को मानता है ना जी हम पाकिस्तानी हैं, हम UAE के हैं, हम सऊदी हैं, वो कभी भी फ़लस्तीन को नहीं छुड़वा सकते। मज़हब बेसिकली छुड़वा सकता है। UN की अगर आप बात करते हैं तो अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये चंद कफन चोरों की तंजीम है, जिन्होंने ये रख लिया है कि शाम वाले, तुम शाम रख लो, तुम कश्मीर रख लो, हम फ़लस्तीन रख लेते हैं और इनके मुर्दों के कफन हम चुराते हैं। ये बेसिकली अल्लामा इकबाल ने UN के ऊपर कहा और हमें UN से कोई तवक्को नहीं है। हम अपनी गवर्नमेंट से सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि आप बाइकआउट ये वो चीज़ें सब कुछ आप करके देख चुके हैं। अब प्लीज़ जहाद के नाम को अब टेररिज्म से जो है ना वो ना जोड़ें, अब जहाद को ले आएँ। ठीक है, अपनी फ़ौजों को भेजें। अगर पहले आपने सफारती तौर पे करके देख लिया, अब आप अपनी जो है उसको भेजें फ़ौजों को ताकि कुछ हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा प्रोटेस्ट में आए शुरका का यही कहना था कि उनकी हमदर्दियाँ फ़लस्तीनियों के साथ है, लेकिन हुकूमत को भी कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने बात की और लोगों ने ये भी कहा कि इज़राइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए। और उसके साथ साथ जो लोग शो ऑफ करने आ रहे हैं उनको भी लोगों ने कहा कि वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम में से नहीं है। उन लोगों को भी देखा जाए जो कि सच में इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं और ऑर्गेनाइज़ करा के ये दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों, एटलीस्ट पाकिस्तानी मुल्क के लोगों की हमदर्दी उनके साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने प्यारों के साथ, ताकि वो इस तरह की स्टोरी से आगाह होते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं।